Hello students, I am Amandeep Kaur. I am assistant professor from Shri Atam Vallabh Jain Girls PG College. Today we will discuss ratio analysis topic of financial management subject. First of all, we will discuss what is mean by ratio. Ratio means the relationship between any two variables. Ratio analysis is used to analyze the financial statements of the business. It is used to analyze the financial position in terms of solvency, profitability, efficiency, liquidity of the firm. There are many kind of ratios to analyze the financial statements. First one is liquidity ratios. Liquidity ratios are used to measure the short-term solvency of the business. When we find that firm has sufficient funds to pay back the short-term obligation in short-term basis, then we use liquidity ratios. There are three kind of ratios. First one is current ratio. It is also known as working capital ratio. In this ratio, we can find the relationship between current assets and current liabilities. Current assets are those assets which are easily converted into cash within 1 year basis, such as bills receivables, debtors, cash in hand, cash at bank, prepaid expenses, stock, short-term investments, marketable securities, advance payments. These current assets are easily converted into cash within 1 year basis. Or current liabilities means those liabilities, those obligations which are easily converted into those obligations which are payable in 1 year basis, such as bills payable, creditors, bank overdraft, outstanding expenses, unearned income, income tax payable, provision for tax, unclaimed dividend, proposed dividend or short-term loans. These current liabilities are payable in 1 year time period. When we find the relationship between current assets and current liabilities, then it is known as current ratio. In this ratio, we can find कि firm has sufficient funds to pay back the short-term obligations or not. Idle current ratio is 2:1. If firm's current ratio is less than the idle one, that means firm has not sufficient funds. Firm is not short-term solvent. But if current ratio is more than the idle one, then that means firms जो है आपके आइडली इन्वेस्टेड नहीं हैं, आपके कुछ फंड्स ऐसे, कुछ एसेट्स ऐसी हैं या आपके जो फंड्स हैं वो आपके बेकार पड़े हैं, आप उनको सफिशेंटली यूज़ नहीं कर रहे हो, आपकी सॉल्वेंट तो हो रहे हो, आप शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट हो, बट आप उनको सफिशेंटली यूज़ नहीं कर पा रहे हो, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे हो. सो करंट रेशियो बेसिकली मेजर द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस कि फर्म हैज़ सफिशिएंट फंड्स टू पे बैक द short term obligations or not. Now in liquidity ratio, second ratio is liquidity ratio, or we can say quick ratio or acid test ratio. In this ratio we can measure the relationship between quick assets and current liabilities. Students, करंट असेट्स में से जब आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे तो वो आ जाएंगी आपकी क्विक असेट्स. स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस आप क्यों लेस कर रहे हो? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? देयर आर द रीज़न. स्टॉक आप इसलिए लेस कर रहे हो क्योंकि आप लिक्विडिटी रेशो में ये मेज़र कर रहे हो कि फर्म हैज़ इंस्टेंट डेट पेइंग कैपेबिलिटी और नॉट, कि फर्म के पास आप इंस्टेंट फंड्स हैं टू पे बैक द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस और नॉट. तो स्टॉक एक ऐसा करंट असेट है जिनको आप इजीली जो है इंस्टेंट बेसिस पर सेल आउट करके इसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाते हो. और प्रीपेड एक्सपेंसेस का भी नेचर ऐसा है कि उससे कोई भी कैश आपको अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि ये ऐसे एक्सपेंसेस जो आप एडवांस में पेमेंट कर चुके हो. तो इन दो असेट्स को आप क्विक असेट्स नहीं बोलते हो. तो करंट असेट्स में से जब आप क्विक असेट्स निकालना चाहते हो तो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस करके आप क्विक असेट्स को कैलकुलेट कर सकते हो. द आइडल लिक्विडिटी रेशियो इज़ 1:1. इस रेशो से भी आपको यही पता चलेगा कि आपके पास इंस्टेंट फंड्स हैं टू पे बैक द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस. अगर आपका फर्म का करंट लिक्विडिटी रेशो 1:1 से लेस आता है तो इसका मतलब है कि आपके पास सफिशेंट फंड्स नहीं है टू पे बैक द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन. इंस्टेंट फंड्स नहीं है, क्योंकि इंस्टेंट डेट पेइंग कैपेबिलिटी आप इसमें चेक कर रहे हो.
बट अगर आपका आइडल 1 से ज़्यादा आ जाता है, 1:1 से आपका आंसर ज़्यादा आता है, तो दैट मीन्स आपके फर्म के जो फंड्स हैं वो आपने आइडली इन्वेस्ट नहीं किए हुए हैं। आप सॉल्वेंट तो हो पा रहे हो, बट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में वो इतना, आपकी एफिशिएंसी में वो इतना यूज़फुल नहीं हो पा रहा है। अब थर्ड रेशो इसी में ही लिक्विड रेशो में हम चेक करेंगे एब्सोल्यूट क्विक और लिक्विडिटी रेशो। एब्सोल्यूट का मतलब है कि आप सुपर इंस्टेंट डेट पेइंग कैपेबिलिटी आप मेज़र करने जा रहे हो अपनी फर्म की, कि आपके पास अगर आप आज ही किसी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पेमेंट करना चाहते हो तो आपके सुपर इंस्टेंट फंड्स हैं या नहीं है। तो उसके लिए हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे एब्सोल्यूट क्विक एसेट्स एंड क्विक लाइबिलिटीज़ के बीच में। एब्सोल्यूट क्विक एसेट्स सिर्फ 3 ही होती हैं, कैश इन हैंड जो आपके पास एक्चुअली अवेलेबल है इजीली, कैश एट बैंक मीन्स आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ मीन्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, दैट मीन्स आप डीमेट अकाउंट में जब चाहो अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करके उसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। सो कैश, बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ ये आपकी एब्सोल्यूट क्विक एसेट्स होती हैं। ये सुपर इंस्टेंट फंड्स हैं जिनसे आप अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे आउट कर सकते हो। सम ऑथर्स क्या करते हैं कि इसमें एब्सोल्यूट क्विक एसेट्स का करंट लायबिलिटीज़ के साथ ही रिलेशनशिप फाइंड कर देते हैं, बट करंट लायबिलिटीज़ में एक बैंक ओवरड्राफ्ट ऐसा है जिसको आपको अर्जेंट बेसिस पे आउट नहीं करना होता, 1 ईयर का टाइम पीरियड होता है। तो आप बैंक ओवरड्राफ्ट को इसमें से एक्सक्लूड कर दीजिए आपकी करंट लायबिलिटीज़ में, तो यू कैन कैलकुलेट क्विक लायबिलिटीज़। द आइडल एब्सोल्यूट क्विक रेशो इज़ वो 0.5:1। आपका रेशो अगर फर्म का इससे ज़्यादा आ रहा है तो फंड्स आपके आइडली इन्वेस्टेड नहीं है, उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है सॉल्वेंट है, आप शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट हो, ठीक है, लेकिन आपके फंड्स जो हैं आइडली इन्वेस्ट नहीं हैं, वो थोड़े से बेकार पड़े हैं, रिमेन आइडल। लेकिन अगर आपका एब्सोल्यूट क्विक रेशो इससे कम आता है तो इसका मतलब आपके पास सुपर इंस्टेंट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी से शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट नहीं है, आपका रिस्क है इसमें, और आप इजीली जो है अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे आउट नहीं कर पा रहे हो, आप सुपर इंस्टेंट पेइंग कैपेबिलिटी आपकी बहुत लो है। सो बाय दिस शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज़ कौन कौन से हैं आपके? करंट रेशो, liquidity ratio and absolute quick ratio, by which we can find the short term solvency of the business. There are many kind of ratios by which we can check the efficiency, profitability, investment and capital structure ratios. So in another lecture we can also discuss the another ratios. Thank you.